like everyone is confused like where to start. नंबर So के लिहाज से बैलेंस शीट के एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन. ओके बुकिश नॉलेज जो है ना वो इज समथिंग एल्स, और जब आप प्रैक्टिकल आते हो तो वो एक अलग ही चीज़ है. बट कभी तो ऐसे हुआ है जितना कि गट फीलिंग के यार यहाँ कुछ सही नहीं है. हो सकता है आपको जॉब की भी ज़रूरत ना पड़े, आप अपना स्टार्टअप कर लो. Assalamualaikum everyone. Today we are exploring beyond the balance sheet and welcome to the Business Buzz. The podcast where we go beyond profit, beyond separate sheet and beyond traditional business thinking to explore the visible forces that truly shape organization. I am your host Iram Parveen and we have a special guest with us, Sir Usman Khalid, who is an audit executive at KPMG. Assalamu alaikum sir, welcome to the show. Walaikum Assalam. Thank you so much for inviting me. It's my pleasure to join you here. Thank you sir. Before we start our podcast, please introduce yourself to your audience. Okay, so my name is Usman Khalid and I'm a ACC qualified, and I've been working in KPMG since past 3 years, and my experience is a bit of like vary because I worked in audit. I started working in audit and now I'm working in financial advisory department, which is quite different from audit, but yeah, we are dealing in financials and other stuff. Okay, interesting. Today conversation is slightly different from typical audit and financing sector. We are exploring the human behavior, ethical dilemma, workforce culture and future readiness that don't appear directly on balance sheet. So before this discussion, share your journey toward auditing and who inspired you to join this profession. Okay, so first of all, just like every student, like everyone is confused like where to start. So when I start my journey, I just chose JCCA because I was good with numbers. I didn't knew about auditing, because it's all because there's not much awareness when you are in like FSC or you're in A levels. Yeah, so after that, like when I joined ACCA, I started looking into these subjects, audit and taxation, and I was naturally good in numbers. I don't know, maybe this was gifted naturally. आपने पहले से क्लियर पाथ सेट कर लिया था. उसी वक्त मुझे हो गया कि यही करना है. और फिर उसके बाद ये इसके पीछे एक और बड़ी रीज़न है जो कि मैं अब मेरे पास भी काफ़ी अभी आते हैं जो जूनियर्स हैं या जो अभी क्वालिफाई करते हैं. इसके पीछे एक और रीज़न ये होती है कि अगर आप ऑडिटिंग में हो या कंसल्टिंग साइड पे हो, इसको मैं एक ही गिनूँगा, उसमें ये होता है कि आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में मूव करते रहते हो. आपका एक जो एक्सपीरियंस है वो डाइवर्स रहता है. आपकी जो नॉलेज है वो एक सेक्टर पे नहीं होती. अब आज मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हूँ, कल टेलीकॉम, कुछ कल किसी और में आ जाएंगे. तो ये एक बहुत ही लर्निंग पर्सपेक्टिव से भी, ग्रोथ पर्सपेक्टिव से ये एक अच्छा करियर पाथ है. तो सर एज एन ऑडिट एग्जीक्यूटिव आप मतलब कंपनी में कभी ऐसी कंपनी को देखा होगा कि जहां आपको सारी चीज़ें परफेक्टली फाइन लग रही हैं, नंबर के लिहाज से, बैलेंस शीट के एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन, बट कभी ऐसे हुआ है कि गट फीलिंग के यार यहाँ कुछ सही नहीं है. अच्छा, इसमें एक मज़े की बात बताऊं, जो जिधर सब कुछ सही लग रहा हो मसला वहीं पे मसला वहाँ पे ही होता है. क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप देखें इसके पीछे ये होता है, जब भी आप किसी ऑडिट पे जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू स्टार्ट ऑडिट, whoever the client is, मैं नाम नहीं लूँगा, इसलिए कि बहुत आए हैं, वो of course they will show that our books is absolutely clean, like there's nothing wrong. Even if you point out mistake, they will not, like no one agrees usually. So ऐसा ही होता है. बट ये of course ऑडिटर का सबसे जो हम पढ़ते भी थे अपनी बुक्स में, जिसको बोलते हैं स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, यही पहली चीज़ होती है जिसको मैं कहूँगा शक करना, जो और यही चीज़ होती है, इसी माइंडसेट से जाते हैं. और यही होता है कि हमें भी हम जब जूनियर थे हमें बताते थे मैनेजर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना, ये नहीं होना. तो ये सब चीज़ें भी काउंट कर रही होती हैं वहाँ पे, कि आप उस माइंडसेट से जाते हो जब कि आपको पता है यार ये गलत ही देखना है, फिर ही आप कुछ उसमें से निकाल सकते हो. ऐसे हो रहा होता है कि नंबर के पीछे की रियलिटी जो हाइड हो रही होती है और ह्यूमन बिहेवियर उसको डिटेक्ट कर रहा है. बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत इसमें बहुत बड़ा रोल है. के लिहाज में सर जो टॉक्सिक वर्क प्लेस कल्चर है, तो वो फाइनेंशियल रिस्क आपके ख्याल से है जो बैलेंस शीट में शो होता हो या हो सकता है?
बिल्कुल, अब टॉक्सिक जो अगर कहीं पे है इस तरह का इन्वायरमेंट, तो सबसे पहले तो देखिए उसका इम्पैक्ट सबसे पहले आपके आता है वर्क फोर्स पे। जी जी। मेन जो रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है आपको, ऑपरेशंस अगर आपके हैं तो आपको ऑफ कोर्स आपको एक आपकी वर्क फोर्स है, आपके इवन फाइनेंस तो चलो नॉन ऑपरेशन स्टाफ हो गया, इसके अलावा बहुत सारे हैं। कोई आपके, अगर आप टेलीकॉम में हो, मैं पिछले दिनों टेलीकॉम सेक्टर में था, तो ऑफ कोर्स उनके इंजीनियर्स हैं जो कोर ऑपरेशंस देखें। अगर वहाँ पे उनमें टीम वर्क नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, और अगर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपके ऑपरेशंस अफेक्ट होंगे, आपका टर्नओवर बढ़ेगा। टर्नओवर इन एम्प्लॉय लेफ्ट टर्नओवर, लाइक अब एम्प्लॉय जितने लेफ्ट करेंगे तो आप रिटेन नहीं कर पाओगे, तो आपकी हायरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, आपका HR एग्जैक्ट जाके आपके वो हायरिंग, फिर आप नए लाओगे रिसोर्स तो उसको ट्रेन करोगे, ट्रेनिंग कॉस्ट। तो कोशिश यही रहती है ऑर्गेनाइजेशंस की कि ऑफ कोर्स जो अपना सीनियर स्टाफ है या जो ऑलरेडी उसको रिटेन करें, एक अच्छा इन्वायरमेंट बना के रखें, तो उनके ऑफ कोर्स इससे एक्सपेंस भी कट होंगे और चलता रहेगा उनका ऑपरेशन। तो आपके ख्याल में कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है? बहुत, एब्सोल्युटली। तो हम ह्यूमन बिहेवियर को ऑडिट कर सकते हैं? अच्छा, अब ह्यूमन बिहेवियर को ऑडिट करना, ये एक काफ़ी टफ क्वेश्चन है। ह्यूमन बिहेवियर का ऑडिट, देखिए ह्यूमन नेचर ऐसी है या बिहेवियर ऐसा है कि उसको जज तो कर सकता है बंदा सामने, लेकिन अब 100% क्या चल रहा है ये कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन स्टिल, जैसा मैंने आपको बोला, एक जजमेंट होती है। ऑडिट भी देखिए, सबसे पहले ऑडिटर इज़, ये नहीं है कि ऑडिटर कहीं पे जा रहा है सो ही इज़ लुकिंग इनटू 100% एवरीथिंग। ऑडिट इज़ ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल सैम्पल बेसिस, और एक जजमेंट यूज़ करते हैं जहाँ पे मुझे हाई रिस्क एरिया लग रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट। पहले मैं रिस्क असेसमेंट करते, रिस्क असेसमेंट में सब आते हैं, इवन ये नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियल्स। आप जो बात करें इसमें, ये कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज़ भी हम देख सकते हैं कि अच्छा अगर हो रहा है या इस तरह का मसला है, तो ऑफ कोर्स वी वुड सी एम्प्लॉय लेफ्टिंग, और ये सब कुछ जो है हमें दिख रहा होगा वहाँ पे। तो ये सब रिस्क असेसमेंट के टाइम पे ही देख लिया जाता है। तो जैसे ट्रेडिशनल ऑडिटिंग होता है कि फोकस कर रहे हैं कि जो डाटा हमें प्रोवाइड किया जा रहा है या जो डॉक्यूमेंट्स हमें दिए जा रहे हैं उसी पे, तो क्या हम, हाउ डू वी असेस द रिस्क ऑफ पीपल कि वो जो कुछ नहीं कह रहे उसको कैसे हम कंसीडर करेंगे? अच्छा, अब वो नहीं कह रहे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ना, इसमें एक चीज़ आ जाती है, इसमें ये होता है कि जो भी ऑडिटर है ना, उसको हमेशा अप टू डेट होना चाहिए नॉलेज से। जब आपकी नॉलेज अगर आपको चीज़ की होगी, तो अगर आपसे कोई कंसील करने की कर भी रहा है कोई चीज़, इन्फॉर्मेशन, तो आपको आइडिया हो जाएगा। और ये चीज़ ऑफ कोर्स जब आप, और नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, आई वुड से, सिर्फ नॉलेज से नहीं होता, जितना आपका एक्सपीरियंस हो जाता है, आप ये चीज़ खुद ब खुद एक आइडेंटिफाई कर भी देते हो, और एक लॉजिकल, ये नहीं कि एक अपना जजमेंट है, ऑफ कोर्स एक लॉजिकल चीज़ भी है। अब जितना मुझे फाइनेंशियल पे ग्रिप है, सो आई वुड नो कि अगर कोई मुझे पे रोल है या कहीं पे कोई चीज़ मुझे मिसिंग दे रहा है या मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहा, तो मैं उसी वक्त आइडेंटिफाई कर लूँगा और उसी वक्त उसको हाईलाइट करना है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्लाइंट के साथ मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है ऑडिट में। ये सिर्फ नहीं है कि क्लाइंट से जाके हमने उन पर धावा बोलते हैं, लड़ना है, मतलब उनके साथ एक लेवल पे रह के उनसे चीज़ें भी लेनी है, और सारी एक लेवल से लेके और एक स्मूथ ऑडिट फ्लो को लेके जाना हो। तो उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ऑडिटर को अपनी चीज़ें पता हो कि मुझे क्या चाहिए। तो अगर उसे वो पता है, तो मेरे नहीं ख्याल से उसको कोई कुछ और पकड़ा रहा होगा। आपके ख्याल में ये जो साइलेंस है कि चीज़ें नहीं बताई जा रही हैं आपको, वो एक बिजनेस रिस्क बन सकता है? ऑफ कोर्स, देखिए अगर कोई मोस्टली हम जाते हैं, अगर तो कोई चीज़ नहीं हाईलाइट कर रहा है या कोई चीज़ उसको हाइड करने की कोशिश कर रही है मैनेजमेंट, सो ऑफ कोर्स उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगी। अच्छा, अब ये नहीं है कि हम इसको हमेशा नेगेटिव देखें। कभी कभार जो अमूमन मैं देखता हूँ, अब एक कंपनी है, मैं अब उसका नाम नहीं ले सकती, उसका मर्जर खैर अभी हुआ है। अब ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो मार्केट को अफेक्ट करती है और करती है, तो मैनेजमेंट इस तरह की चीज़ें हाइड भी करती हैं, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है कि अब मर्जर होने वाला है और एक रूमर है। अगर वो पहले से ही, अभी वो हुई नहीं है चीज़, और रूमर की बेसिस पे अगर वो हमें इन्फॉर्मेशन दे देंगे, तो आई गेस वो भी अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन जहाँ पे अगर कोई इतना रिस्की एरिया और जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन अगर कंसील कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई रीज़न तो होगी इसके पीछे। मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ को इम्प्रूव करने में आप मदद साबित होती है कि एवरीथिंग इज़ परफेक्टली फाइन, या कल्चर को अगर बेहतर बना रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन की ऑटोमेटिकली हेल्थ को भी बेहतर कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, हाँ जी। तो आपके ख्याल में कंपनी प्रायोरिटाइज करती हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या उसमें लॉन्ग टर्म एथिकल सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाती हैं? तो एज एन ऑडिटर, हाउ इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बैलेंस कमर्शियल
जो कमर्शियल रियलिटीज़ हैं और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों को बैलेंस कैसे करना है? हाँ, ये वैसे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें देखें, ये अब कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, लेकिन जो मोस्टली जो स्टार्टअप्स हैं हमारे जी। पास, बिजनेसेस हैं, ठीक है, उसकी मैं बात करूँगा। अब इसमें ना फ़र्क है, अगर एक होती हैं एसएमईज, बिल्कुल। स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस, और एक है बड़ी लिस्टेड बड़ी कंपनीज, listed ठीक है। आप उसको दो कैटेगरी में, लार्ज और ये स्मॉल। तो अब इसमें देखें, जो स्मॉल कंपनीज हैं ना, जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उनको वो शॉर्ट टर्म की तरफ फोकस कर रहे होते हैं मोस्टली, क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न है कि आप एक इन्वेस्टर से पैसा लेके आ रहे हो। अगर आज आपने मुझे दे दिए 10 मिलियन और मैं आपको अगले साल बोलूँ यार कुछ मैं तो लॉस में जा रहा हूँ, तो आप पैसे अपने वापस ले लेंगे। जी। तो एक चीज़ होती है, इन्वेस्टर्स को भी हमने मतलब इंगेज रखना है, उनको और trust मैनेजमेंट भी। को ट्रस्ट बिल्ड करना है, तो वो ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म की तरफ चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो जिन्होंने लॉन्ग टर्म काम किया। मैं पिछले दिनों एक मेरा अपना वैसे थीसिस भी थे, मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया हुआ था ना, बाहर यूके की यूनिवर्सिटी है, तो मैं एक कंपनी पे लिख रहा था, डेकर्स है, वो एक जूतों का ब्रांड है, काफ़ी बड़ा है, S&P 500 में आती है कंपनी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो उसकी अगर आपको मैं कहानी बताऊं, तो उसकी भी मैं अब आप एक ऑडिटर जब एक अपने दूसरे काम के लिए फाइनेंशियल्स पढ़ रहा होता है ना, तो वो भी उसी पर्सपेक्टिव से देख रहा होता है। तो मैं उसे जब देख रहा था, तो मुझे ये दिखा कि वो ऐसा थे कि उन्होंने असल में बिज़नेस ग्रो किया। उन्होंने एक ओवर द पीरियड उनको 30-40 साल लग गए, लेकिन अब जाके वो कम्पीट कर रहे हैं, मतलब नाइकी, इवन एथलीजियर ब्रांड्स को कम्पीट कर रहे हैं। तो उनको एक टाइम लगा, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म की एक बिल्कुल एक मिसाल है कि अगर किसी को स्टोरी भी पढ़नी है, वो एक एंटरप्रेन्योर था, स्कूल से निकले, दोस्तों का एक था स्टार्टअप, बट स्टिल सस्टेनेबिलिटी और एक लॉन्गर ग्रोथ की तरफ, और स्टिल अभी तक वो CEO है, जो कि मोस्टली नहीं होता कंपनीज में। अक्सर आगे जाके वो ड्रॉप डाउन हो जाते हैं, एक शेयर होल्डर बन जाते हैं, मगर वो अभी तक ऑपरेट कर रहे हैं और ख़ुद एक ऑपरेशंस में उसको मतलब एक हैंड है उनका, आगे हैं। तो ये एक लॉन्ग टर्म की आपके सामने एक मिसाल है, और ये बिल्कुल वर्क करती है। और आप जो खुद एक जेन ज़ी आई थिंक हाँ, है, बिल्कुल। तो मतलब जेन ज़ी तो अवॉइड करता है कि 9 to 5 जॉब हम अवॉइड करें, स्टार्टअप अपनी, हमारा अपना बिजनेस हो। तो एक आपका क्या ख्याल है कि एक सेफ साइड कौन सी है, जॉब साइड या फिर बिजनेस साइड? हाँ, अच्छा, अब इसमें ना, अब इसमें आजकल का जिसना आपने बोला, मैं खुद भी जेनजी, और मेरे सारे इर्द गिर्द दोस्त और सबको मैं देखता हूँ, हर किसी ने जो जेनजी है बिल्कुल ऐसा ही है कि वो 9 to 5 नहीं पसंद कर रही, और उन्होंने कोई ना कोई, जिसको हम बोलेंगे शॉर्टकट्स या जुगाड़ जिसको मैं बोलूँगा, निकाले हुए हैं। आप किसी से भी मिलेंगे, वो कहेंगे यार मैंने ये शुरू किया, लेकिन स्टिल उसमें एक मसला है। जेनजी या कोई भी, सिर्फ जेनजी नहीं, कोई भी आजकल है, वो एक जहाँ पे एक जिसको बोलूँगा ना कि क्राउड जिधर जा रहा है सारा, उसकी तरफ चले जाते हैं। अब पिछले दिन ई-कॉमर्स सब कहेंगे यार मैंने ई-कॉमर्स का स्टार्टअप ले रहा हूँ, बस अब ट्रेडिंग करूँगा, मैं ये करूँगा। तो ये चीज़ ऐसी है कि ये आपकी अपनी थिंकिंग नहीं है, आप क्राउड को सोच के जा रहे हो। पहले अगर स्टार्टअप कोई बुरी चीज़ नहीं, आप करो, बेशक बिजनेस को अच्छी बात है और हर किसी को उसकी तरफ आना चाहिए, बट आपके पास एक टारगेट हो, एक गोल हो, और ऐसा नहीं है कि 9 to 5 इज़ समथिंग कि मैं उससे भागूँ। वो भी एक चीज़, अगर आप लर्निंग पर्सपेक्टिव से जा रहे हो ना, आप उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हो इवन अपने स्टार्टअप में। अब अगर मैं ऑडिटिंग फील्ड में, कि मेरे साथ आ रहा है फर्म में, तो ऑफ कोर्स उसको जब इतनी कंपनीज में जाएगा, उसकी कम्युनिकेशन, उसको लोगों से मिलेगा, उसकी नेटवर्किंग बढ़ेगी। अब आपने कल को वही चीज़ अपने बिजनेस में भी तो करनी है, तो आप वो चीज़ किसी और के बिजनेस में प्रैक्टिस करके आप 9 to 5 में अपने पे इम्प्लीमेंट करो। लोग 9 to 5 से भागते हैं, मेरे ख्याल से आप इसको एक तरीके तक यूटिलाइज़ कर सकते हो अगर आपका बिज़नेस प्लान है। अगर आप नहीं है बिज़नेस प्लान, और आपको एक पसंद है, फील्ड पसंद है, यार मैंने काम करना है, और आप एक जिसको असल में स्टार्टअप और उसमें थोड़ा आपको कंफर्ट लेवल से बाहर निकलना, अगर अब ये बंदे की वो भी है कि अगर कोई रहना चाह रहे हो तो ये भी बुरा नहीं है कंफर्ट लेवल पे, वो एक अपने लिहाज से जॉब देखे, और जो उसको है पसंद है और जिस पे वो एक्सेल कर सकता है, समझता है मैं इसमें अच्छा हूँ, वो उसमें जाए। तो जिस तरह ऑडिटर मेजर करता है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को, और इन्वेस्टर, और जो इन्वेस्टर हैं सारे, उनका फोकस AI की तरफ, क्रिएटिविटी, इनोवेशन की तरफ जा रहा है, तो आप कैसे मेजर करेंगे एबिलिटी टू इनोवेट व्हेन इट्स डजंट हैव अ क्लियर लाइन आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट?
अच्छा, अब इसमें देखें ये आजकल इस तरह आ रहा है। सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपने बात की टेक्नोलॉजी, तो ऑफ़ कोर्स जितनी भी कंपनीज़ हैं अब ये कोई छुपी हुई बात नहीं रही। अब जो नहीं अडॉप्ट कर रहा है इस चीज़ को वो हिट ले रहा है। अब जिस तरह इसकी मिसाल अब आपने की है, तो एक अगर कंपनी की तो नोकिया का अगर पता होगा, नोकिया एक इस तरह की वन ऑफ द एग्जांपल है जिसने अडॉप्ट नहीं किया और उसने हिट ली। इनोवेशन, तो इनोवेशन जो चीज़ है, ये जितनी भी कंपनीज़ है ऑफ कोर्स उनके एक एक्सपेंस होता है। अगर कोई बैलेंस शीट एनुअल रिपोर्ट खोले तो उसमें वो एक लाइन आइटम देखना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जिसको हम बोलते हैं। R&D का जो एक्सपेंस होता है ये बहुत ज़रूरी है। ये एक आपकी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को दिखाता है कि हम अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई मेरी मोबाइल है, मैं एप्पल में सी हूँ, तो ऑफ कोर्स हमें इस प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर करना है, टेक्नोलॉजिकली मतलब इम्प्रूव करना है। आज ये 100 बना के हम बेच देंगे, सेल्स तो हो जाएंगी, लेकिन कल इसमें R&D का जो हमारा है एक्सपेंस, ये बहुत मैटर करता है और मार्केट में रहने के लिए। और ये एक बहुत चीज़ है, और जो इसको कर रहे हैं और जो कर भी रही हैं इस कंपनीज, वो जा रही हैं। और इस वक्त अगर S&P 500 की बात की जाए, जो कि टॉप 500 कंपनीज हैं दुनिया की, उसमें भी मेजॉरिटी टेक ही हैं। और वो अब यही है, टेक्नोलॉजी का ही दौर है, तो ऑफ कोर्स टेक कंपनीज ही अब बूम पे जा रही हैं सारी। जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो इस तरह आपको लगता है कि ये एज ऑडिटर आप, तो ये आपके रोल को भी ट्रांसफॉर्म कर रहा है कि नंबर वेरीफायर से एथिकल एडवाइज़र या स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट की तरफ? बिल्कुल। अब जो अब अगर बात की जाए 15 साल पहले के ऑडिट की, पहले होता था फाइलों वाला है और ये साइन लिया वो लिया। अब चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। ऑडिट में भी एक चीज़ होती है IT ऑडिट, ठीक है। अब ये भी हमारे उसका एक होता है, जो हम लोग किसी भी कंपनी के ऑडिट पे जा रहे हैं, तो ऑफ कोर्स सबसे पहले ना अब फॉर एग्जांपल आजकल मोस्टली कंपनीज में देख रहा हूँ SAP पे हैं, SAP की तरफ। तो अब देखें, अगर SAP एक सिस्टम है, अब सिस्टम को अगर समझना, इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें कोई फ्रॉड का एलिमेंट नहीं है, इसमें कंट्रोल सही नहीं है, कंट्रोल वीकनेस है, तो ऑफ कोर्स हमें सिस्टम का वॉक थ्रू करके उसकी रिलायबिलिटी लेनी पड़ती है, उस पर अश्योरेंस लेनी पड़ती है। सबसे पहला स्टेप ही ये है कि अगर कोई, या ये तो SAP तो चले एक फिर भी एक बहुत इम्प्लीमेंटेड है, बहुत वेल नोन है। बहुत सारी कंपनीज, इवन जिस तरह मैं टेलीकॉम सेक्टर में था, तो वो स्पेसिफिक मैं नाम भी ले रहा हूँ, यूफोन में। अब यूफोन में इस तरह है कि उनकी जितनी भी आप देखते हो सिम्स वगैरह है या कुछ स्क्रैच कार्ड्स होते हैं, तो ऑफ कोर्स वो एक्टिवेट होता है, उसका एक पीछे केयर्स इनका एक सिस्टम है। तो अब कोई भी सिस्टम है, अगर उसको हम नहीं देखेंगे, अगर हम सबसे पहले हमारा काम ये है कि हमें उसका एक डीप एनालिसिस करना है, उसका वॉक थ्रू हम बोलते हैं, जिसमें IT ऑडिट टीम को, हम लोग की अगर एक्सपर्टीज़ नहीं है तो हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है, या हम भी अब आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें सीख रहे हैं, हमारी भी लर्निंग उस लिहाज से हो रही है। तो वो चीज़ें देख के जब सिस्टम पे फुल रिलायंस है, तो फिर हम आगे ही मूव करेंगे, उसके बगैर तो हम मतलब समझ रहे ऑडिट अधूरा है। अब आजकल ने इम्प्रूव भी किया है, बिल्कुल टेक्नोलॉजी ने इसको बहुत इम्प्रूव किया, रूटीन वर्क को कम किया है। और बिल्कुल बस जो इसको सही तरह यूज़ करना जानते हैं उसका काम अब कम हो गया थोड़ा सा। अगर कोई ट्रेडिशनल वे में अभी भी लोग चल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उनका फिर यह कि टाइम ज़्यादा अभी भी है, लगता है उन चीज़ों में। सही। तो सर, अगर एक मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, तो व्हाट काइंड ऑफ लीडरशिप क्रिएट द हेल्दी एंड मोस्ट ट्रांसपेरेंट वर्कफोर्स कल्चर? ओके, अब देखें इसमें भी अब दो किस्म की चीज़ें होती हैं। अब एक होती है अथॉरिटेटिव लीडरशिप, ठीक है। अब ये नहीं है, अब इसमें लीडरशिप के भी आप लोगों ने मॉडल्स पढ़े होंगे, बहुत मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, ठीक है। अब मुझे सारे याद भी नहीं है लेकिन जो मोस्टली मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि एक लीडरशिप को मैं बोलूँ अथॉरिटेटिव गलत है, ये लोग गलत कोई भी नहीं है। अब ये चीज़ आपके देखें कल्चर पे भी डिपेंड करता है। आपके लीडरशिप, असल में कल्चर भी, हम पहले बात करते थे, कल्चर भी लीडरशिप से ही आता है, टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। अब अगर लीडरशिप एक अथॉरिटेटिव है, अगर और इस बात से पहले एक और बात अगर करूँ तो ज़्यादा सही रहेगा कि कंपनी के उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी की जो साइज़ है वो क्या है। जैसे मैं SME और वो बात कर रहा था ना, अब अगर एक छोटी कंपनी है तो ऑफ कोर्स उसका CEO, अगर मैं स्टार्टअप में, तो फिर मैं एक अथॉरिटेटिव ही लीडर बनूंगा कि मैं ही सारी चीज़ों को खुद देख रहा हूँ और मैं खुद ही उसको एक एक चीज़ पॉइंट आउट करके, एक एक चीज़ में जिसको बोलते हैं पॉइंट आउट करना, नीटी ग्रीटी चीज़ों में घुसना जो होता है ना, तो
एक इस तरह की लीडरशिप दिखेगी। और हो सकता है कुछ लोगों को काम करना ऐसा पसंद ना हो, लोग कहें कि नहीं हमें पसंद है, हमें एक साइड से ऑन टू ऑन कम्युनिकेशन तो हो रही है, बिल्कुल कम्युनिकेशन लेकिन है। और एक जो जिसका नॉलेज है, जिसने स्टार्टअप किया, आप वो आपके डे टू डे ऑपरेशन में अगर इन्वॉल्व है तो ये बुरी बात नहीं है, ये भी अच्छी है। लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से मैं कह रहा हूँ, इसको देखा जा सकता है कि मेरे पास वो एम्प्लॉयज़ कह सकते हैं कि हमें फ्री वो नहीं दी हुई विल कि हम अपनी मतलब ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखा सकें या कुछ। तो दूसरी तरफ अगर कोई हम देखते हैं जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाती है ना, आगे आप उनके देखेंगे कि उतना उतना एक गैप आ जाता है एक टॉप लेवल में, और उसमें फिर बहुत सारे वो आ जाते हैं ना लाइंस बीच में, जिस तरह फिर अब सीईओ के बाद आपके पास आ जाएंगे डायरेक्टर्स, आ जाएंगे फिर सीनियर मैनेजर्स, फिर मैनेजर्स, फिर एएम्स असिस्टेंट मैनेजर्स, फिर उसके टीम लीड होगा, फिर उसके बाद आपका तो इतने जो ब्लॉक्स हैं और ये सब आप करके आ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ये अब एक ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ की वजह से भी डिफरेंस आ रहा है ना, तो ऑफ कोर्स अब उसमें एक उनके लीडरशिप का स्टाइल बहुत डिफरेंट होगा। एक सीईओ को हो सकता है पता भी ना हो कि मेरे यहाँ पे ऑपरेशंस कहाँ पे है, लेकिन स्टिल वो उसके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको अगर चाहिए आपको एक्सपेंशन करनी है, अगर मैं यहाँ से आज इस्लामाबाद से छोड़ के मैं चाह रहा हूँ लाहौर में भी हो जाऊँ, कराची में भी जाऊँ, तो मैं एक जगह पे ही हो सकता हूँ। तो ऑफ कोर्स वहाँ पे मुझे आउटसोर्स करना पड़ेगा, वहाँ पे टीम बनानी पड़ेगी जिस पे रिलाई करना है। तो ये चीज़ें मतलब वही है कि बिजनेस के साइज़ पे डिपेंड कर रहा है और उसके फाइनेंस पे कि जिस तरह है वो। सर जैसा कि आपको काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिला होगा, तो उसमें आपने कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक नोटिस किए होंगे जो कंपनी में मतलब आपको लगा हो कि वो फाइनेंशियल फैक्टर नहीं, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल फैक्टर जो मतलब अफेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय के मोरल को, ट्रस्ट को या लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को, ऐसा? अच्छा, एम्प्लॉय स्पेसिफिक। जी, एम्प्लॉय स्पेसिफिक। अच्छा, अब देखें एम्प्लॉय स्पेसिफिक जो मैंने देखी है चीज़ ना, मोस्टली अब जिस तरह अगर हम जेनजी की बात कर रहे थे ना, उस पर आ जाता हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली जो न्यू हायरिंग होती है और आ रहे होते हैं एमटीओज मोस्टली जो फर्स्ट पोस्ट खुलती है, मैं नेस्ले भी उस दिन गया हुआ था, तो वहाँ पे मैं ये देख रहा था कि जो भी आ रही है, जो चीज़ इम्पेक्ट करती है ना सबसे ज़्यादा, यंग जनरेशन आजकल ना पैसे को पता नहीं क्यों थोड़ा सा कम देख रही है, उनके पास शायद और सोर्सेज हैं, लर्निंग की तरफ ना काफ़ी लोगों का है रुझान। अब पहले मैंने देखा था कि इस तरह नहीं था, लेकिन अभी लोग लर्निंग वाले आ रहे हैं, उनको मतलब एक शौक होता है कुछ लोगों को लर्निंग का, कि मतलब या तो उन्हें मतलब वो खुद एक चीज़ों में हो रहे थे, इन्वॉल्व होना चाह रहे होते हैं, कहते हैं हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो। तो ये एक चीज़ है कि जहाँ पे लर्निंग अगर जिस कल्चर में हो, ये एक चीज़ हो ना लर्निंग वाला, कि जहाँ पे एक बंदे को कॉन्स्टेंटली लर्निंग मिल रही है, उसको ये नहीं लग रहा कि मैं एक जगह पे आके ना अपने कैरियर में रुक गया, मतलब अब यहाँ पे मैं हूँ, रिपीटेटिव काम है, मुझे कुछ मेरी वैल्यू एडिशन मेरे अपने उसमें नहीं हो रही। तो वो चीज़ एक है कि जब तक लर्निंग चलती रहती है, इसमें एचआर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर तो एक कॉन्स्टेंटली लर्निंग है, कोई रोटेशंस आप करवा रहे हो, एक नया बंदा आया उसको एक जगह से, फाइनेंस के अंदर भी डिवाइडेड होते हैं कि रिपोर्टिंग है, FP&A है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, जो बजटिंग वगैरह करते हैं। तो जिस तरह रोटेशन हो रही है, जिस तरह लर्निंग जब तक चल रही है ना, एम्प्लॉयज़ फिर इंगेज रहते हैं, उनको भी एक अपने काम की बर्न आउट भी नहीं होंगे, से भी थोड़ा उनको रिलैक्स मिल जाता है, बिल्कुल, और फिर ही वो ओनरशिप लेते हैं अपने काम की। जैसे ऑडिट एग्जीक्यूटिव हैं तो डिसिप्लिन, रिस्क अवेयरनेस और अटेंशन टू डिटेल इसमें चाहिए होती है। तो हाउ यू इन्फ्लुएंस योर माइंडसेट और पर्सनल लाइफ को और अपनी इस लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? अच्छा, अब इस चीज़ का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, पता है, क्योंकि जब अच्छा ऑडिट में सबसे पहले, क्योंकि ऑडिट अगर टॉपिक छेड़ा वही ना, इसमें सबसे पहली बात ये कि जो स्टार्टिंग की ईयर्स है कि ऑफ कोर्स मेरा ये नहीं है कि आई एम ऑन, मतलब मुझे कोई 7-8 साल हो गए, इवन 7-8 साल भी हो जाए, इसमें मशहूरी ऑडिट फील्ड इस वजह से है कि इसमें वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना वो बहुत ही कम है, और इसमें बहुत कम है, इसमें बहुत कम है, आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना डेडलाइंस बहुत टाइट हैं। आपको अब जिस तरह करेंटली हमारा अभी भी सीज़न चल रहा है, मैं एक केस की फर्म के साथ भी काम कर रहा हूँ ऑडिट का, ठीक है, अब 30th लास्ट डेट है टैक्स फाइलिंग की, तो उससे पहले अच्छा ऑडिटर टैक्स ये सब ना एक साथ ही चल रहा होता है, एक ऑडिटर है वो एक फाइनेंस अकाउंटिंग जानता है, तो वही टैक्स फाइलिंग और ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं, ठीक है। तो अब मैं यही है कि अब मेरी अगर रूटीन है तो मतलब रात के 12 से पहले तो उठना ही नहीं है और लग रहा है और बहुत ज़्यादा ही लगता है, तो ये फील्ड इस तरह की, लेकिन स्टिल अब ये बंदे की मैनेजमेंट में भी होता है। अब कोई जिस तरह है, अगर ज़्यादा चीज़ों में अगर अपने आप को इन्वॉल्व ना करे और एक लेवल तक रखे तो वो भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव अलग है, मैं थोड़ा ज़्यादा लर्निंग का शौकीन हूँ, तो शायद हाँ, तो मैंने ये लेकिन ये भी मैंने अपने पे खुद लिया हुआ, ऐसा नहीं है कि जो भी आएगा उसके साथ ऐसा ही होगा, आप चाहें तो एक लेवल तक इसको मेंटेन रख सकते हैं अपने लिहाज से।
तो सर हमने जैसे ऑडिटिंग में देखा है कि अक्सर फ्रॉड ट्रायंगल चल रहा होता है कि जैसे प्रेशर है, अपॉर्चुनिटी है, फिर उसको रैशनलाइजेशन की तरफ आ जाते हैं। तो हम इसको फ्लिप कर देते हैं, ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज़ और लीडरशिप पे लेके आते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, अब जो फ्रॉड पॉजिटिव वे में, अब वो एक फ्रॉड का एलिमेंट आ गया था कि जिसमें प्रेशर भी है, अपॉर्चुनिटी भी, ऑफ कोर्स उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें नज़र आ रही होंगी, लेकिन अगर हम इसी ट्रायंगल को फ्लिप कर देते हैं कि मतलब ग्रोथ, एथिक्स और लीडरशिप देखते हैं, तो उसको आप पॉजिटिव वे में कैसे डिफाइन करोगे कि किस तरह ये ट्रायंगल या फ्रॉड ट्रायंगल या ये पॉजिटिव साइड ऑफ ट्रायंगल है, इसको कैसे देखेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो अगर फ्रॉड के आपके ना उसको ट्रायंगल को फ्लिप कर रहे हैं, ठीक है, तो अब उसमें तो यही है कि अगर कोई भी, सबसे पहले अगर फ्रॉड की बात की जाए ना, अगर कहीं पे भी फ्रॉड, सबसे पहले फ्रॉड आता क्यों है, पहले तो सवाल ये है, फिर उसको फ्लिप करवाएंगे। उसमें सबसे पहले अगर मैंने देखा है कि अगर तो या तो किसी का कोई पर्सनल एलिमेंट भी हो सकता है कि कोई अपने पर्सनल मफाद के लिए कोई कुछ करना चाह रहा है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कंपनी की भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो कंपनी का इन अ सेंस, देखें कंपनी कौन है, कंपनी शेयर होल्डर्स की है, ठीक है। जब अगर आप शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो कि कंपनी का उसमें कुछ वो हो रहा है, क्योंकि शेयर होल्डर से ही कंपनी है। अब क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, सीईओज, या तो अगर वो अपने जो भी उनका, अगर उनकी उससे जो भी उनकी सैलरी है या जो भी बोनसेस लिंक है इसके साथ, फाइनेंशियल या परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स के साथ, तो ऑफ कोर्स काफ़ी जगहों पे देखा है और इस तरह काफ़ी इन्फ्लेट की जाती है अपनी फाइनेंशियल्स, ताकि एक शेयर होल्डर को एक मतलब फेक सी रिप्रेजेंटेशन चली जाए कि हमारे इस तरह के फाइनेंशियल्स हैं, प्लस अपनी जेब में भी चला जाए अपने जो, और लॉन्ग रन में वो नुकसान ही है। तो अगर फ्रॉड का देखा जाए, हमेशा ही वो एक अपने ही लेवल पर्सनल के लिए रहा। और फ्रॉड की अगर सबसे बड़ी किसी को मिसाल देखनी है, अगर आप लोगों को शौक है पढ़ने का, तो आप इनरॉन स्कैंडल दे सकते हैं। इनरॉन अभी आज के जैसे आई मीन KPMG, तो इससे पहले पहले बिग फोर है, उससे पहले बिग 5 हुआ करती थी, तो जो, और बिग 5 की एक फर्म थी ऑर्थर एंड एंडरसन, ठीक है। ये एक, इसके बारे में आप लोगों को लाजमी रीड करना चाहिए। फ्रॉड का आपको इससे पता चलेगा कि ऑडिटर्स खुद फ्रॉड करने पे शामिल हो गए थे, ठीक है। और ये एक इनरॉन कंपनी थी, वो भी बहुत बड़ी कंपनी थी USA की। उसमें आप लोग जब पढ़ेंगे, क्योंकि अब डिटेल में तो हम डिस्कस नहीं कर सकते मसला क्या होता है, लेकिन इन शॉर्ट उसमें ऑडिटर्स और जो कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट है, देखो, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ही अपने लिए काम अगर करने लग जाए तो समझे फ्रॉड, वो अपने ही इंटरेस्ट के लिए कर रहे थे। एंड में नुकसान क्या हुआ, दोनों ही बंद हो गए। तो अगर देखा जाए ऑर्गेनाइजेशन को, क्या उसमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा था, एट द एंड हर कोई अपने लिए देख रहे थे, जो ऑर्थर एंडरसन के पार्टनर्स थे और जो भी इनरॉन की टॉप मैनेजमेंट। तो एंड में फाइन पेनल्टीज पड़ के अब उनको कोई भी नहीं जानता इस वक्त दुनिया में। ओके, तो सर पर्सनल प्रेशर और सेंस ऑफ पर्पस ड्राइव, तो उसमें हाई एथिकल स्टैंडर्ड को किस तरह मेंटेन किया जाए लाइफ में? बिल्कुल, ये एक चीज़ है कि जब प्रेशर एक चीज़ पे बंदे पे पड़ रहा है, जैसे मेरे पे भी है, तो ऑफ कोर्स एक बंदा शॉर्टकट की तरफ जाता है, या एक हो सकता है कि मैं अनएथिकल चीज़ की तरफ आ जाऊं कि जिसको जो कि नहीं करना चाहिए, जस्ट फॉर द सेक कि मेरा वर्कलोड या मेरा ये चीज़ कम हो जाए। लेकिन इसको मैनेज करने की अगर इसकी मैनेज करने की बात है, अब इसकी मैनेज करने की बात, तो ये आपकी सारी बात आती है आपकी शुरू आपकी मेंटालिटी से। अगर आप काम इसलिए सिर्फ कर रहे हैं कि अगर तो आप दूसरों के लिए काम करें, कि मैंने अपने वर्क प्रेशर पे आ रहा हूँ ना, कि अगर आपने अपने मैनेजमेंट को सेटिस्फाई करना है, ये करना है, तो फिर तो आप ऐसे कर करके इधर उधर शॉर्टकट्स ढूंढ के आप जो जिसमें आपका एथिकल और वो जा रहा होगा आप कर देंगे। लेकिन अगर आपकी मेंटालिटी ही काम करने की एक ये है कि मैं एक काम कर रहा हूँ, उसका एक तो मेरे में भी एक मुझे में लर्निंग आ रही है, मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, और प्लस एक वैल्यू एडिशन इटसेल्फ दुनिया में कर रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स ये एक एलिमेंट, अगर ये वही बात है माइंडसेट की, अगर आप इस माइंडसेट से जो भी चल रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो इसकी तरफ जाएगा, और वो सबसे मतलब एक इसको लीस्ट प्रायोरिटी रखेगा कि एथिकल चीज़ को करूँ। वो हमेशा एक अच्छे, एक सस्टेनेबल जो एक एथिकल सोल्यूशन है, हमेशा उसकी तरफ जाएगा, ना कि एक कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस की तरफ जाए जिससे उसका काम आसान हो जाए। तो सर आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या देखते हैं कि इस इंडस्ट्री, ऑडिटिंग, फाइनेंस में, कि वो किस तरह पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? अच्छा, अभी आजकल जो अब आ रही है, अब फाइनेंस जो है, जिस तरह आपने भी बोला, पीछे AI की बात हो रही थी, ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा अब ये डिबेट रहती है कि
ऑडिटिंग और ये सब रिप्लेस हो जाएगा, क्या हम AI से रिप्लेस हो जाएंगे? तो उसका सबको ही पता है कि ऐसे भी नहीं है कि AI से रिप्लेस होंगे। ऑल्दो AI आजकल अगर कोई क्लाउड यूज़ करता है, आपको फाइनेंशियल मॉडल्स भी, सिर्फ फाइनेंस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, फाइनेंशियल मॉडलिंग अगर कोई करता हो, फाइनेंशियल मॉडल भी आपको पूरे बना के दे देगा। लेकिन स्टिल इसमें एक चीज़ आती है, जब तक आपकी एक जजमेंट और वो लेवल हो, आप एक फुल चीज़ आउटसोर्स नहीं कर सकते AI पे। तो आजकल अगर जो सबसे पहले जो भी फाइनेंस में है, सबसे पहले तो उसको अपना जो भी टेक्नोलॉजी उसके साथ भी अप टू डेट रखना है। अगर AIs हैं तो ऑफकोर्स उसको यूज़ करें, बिल्कुल यूज़ करना चाहिए, और उससे एक लर्निंग भी हो सकती है। अगर वो फाइनेंशियल मॉडल बना रहा है, आप उसको टीच मी हाउ टू मेक अ फाइनेंशियल मॉडल एंड शॉर्टकट्स, यस, तो आप उससे सीखो, उससे आपकी लर्निंग बढ़ जाएगी सबसे पहले। और उसके बाद अगर कोई फाइनेंस में आ रहा है तो उसको अपना इंटरेस्ट का आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले इंटरेस्ट का आइडिया लेना ज़रूरी है कि फाइनेंस में सिर्फ ये नहीं है कि आप ऑडिटिंग में चले जाओ, उसके अलावा रिपोर्टिंग, ग्रुप रिपोर्टिंग होती है, उसके अलावा जो फाइनेंस, ये तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को दोनों को साथ रखते हैं। ऑडिटिंग बेसिकली वैसे फाइनेंस नहीं, अकाउंटिंग में आ जाता है जो, और टैक्सेशन भी इसी तरह। जो फाइनेंस में अगर है उसमें तो बहुत सारे रोल हैं, जैसे मैंने FP&A का बोला है, उसकी तरफ मोस्टली यंग लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं। तो उसकी तरफ देखें, लर्निंग करें। अभी से अगर चीज़ों को देखना शुरू करेंगे तो यंग जनरेशन को पहले से आइडिया हो जाएगा कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे, फिर वो उसके लिहाज से वहाँ पे मेहनत करे और सीख के वहाँ पे चला जाए। तो सर, आफ्टर विटनेसिंग मैनी बिजनेसेस के कुछ फेल हुए हैं, कुछ सक्सेस हुए हैं, तो आप पर्सनली इसको कैसे कि रिस्क टेकिंग इन योर कैरियर एंड लाइफ कैसा है? अच्छा, अब मेरा तो, मैं तो चलता रिस्क में हूँ तो ये है कि रिस्क टेकिंग वैसे तो एक जारी बात है, एक हर किसी की एक पर्सनल वो होती है, लेकिन मेरे नज़दीक, क्योंकि मेरा पता नहीं इतना माइंडसेट है, मेरे नज़दीक बंदे को रिस्क टेकर होना चाहिए। अगर तो आप हर जगह पे सेफ खेलेंगे तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ना जाने देंगे। अगर आप कहेंगे नहीं इसको आज जाने देते हैं, कल इस पर देखेंगे, अभी टाइम है, और जितना आप रिस्क लेंगे, आप रिस्क से क्या होता है, रिस्क लेने का क्या मतलब है? रिस्क लेने का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ से बैक डाउन नहीं कर रहे, आप इन्वॉल्व होना चाह रहे हो कि ठीक है मैं ओपन हूँ, आई एम ओपन टू डू दिस। और फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट में ना, जब अगर एक बंदा कैरियर के स्टार्ट में, आई डोंट थिंक सो उसको सेफ खेलना चाहिए। अब एक आगे जाके ऑफ कोर्स एक बंदे का इतना हो जाता है कि बंदे की फैमिली है, फिर बंदे को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं जो कि पर्सनल लाइफ वाली भी हैं। क्योंकि जो स्टार्ट में आ रहा है, आई डोंट थिंक सो कि उसको किसी भी चीज़ से बैक डाउन करना चाहिए। रिस्क पे चले, लेकिन कैलकुलेटेड। ऐसा भी नहीं कि रिस्क बस ये जो पसंद आ गया। एक सबसे पहले होना चाहिए प्लान। जब प्लान है उसके साथ आपका जब रिस्क लेंगे ना, तो वही कैलकुलेटेड रिस्क होगा। प्लान है, आपको पता है इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। ऑफ कोर्स उसमें चांस है फेलियर के भी और सक्सेस के भी, लेकिन वो एक कैलकुलेटेड है। आपको पता है मेरा प्लान है और मैं इसको ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और हो सकती है, सक्सेस पॉसिबल है, तो फिर जाना चाहिए। तो रिस्क टेकिंग हमें तो मतलब एक टाइप ऑफ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं कि हम न्यू चीज़ें, इनोवेशन और न्यू मार्केट और वो चीज़ें लेके आए। मतलब इस पॉजिटिव साइड अगर हम उसकी देखें तो ये मैं इस पॉजिटिव साइड का जिक्र कर रहा हूँ कि पॉजिटिव साइड, मैं तो इसको एज अ पॉजिटिव साइड ही देखता हूँ, स्पेशली यंग जनरेशन के लिए। रिस्क टेकिंग वही है कि जब तक कैलकुलेटेड हो आपका प्लान हो, आप रिस्क की तरफ चले जाएं, बिल्कुल एक लें। और जेन ज़ी जैसे है वो तो कहती है कि शॉर्टकट ढूंढे, रिस्क ले रही है तो वो हाई रिस्क पे ही चल रहे हैं जेन ज़ी। हाँ, अब उसका नुकसान, अब अगर नुकसान की चले, अब मैंने तो सारे फ़ायदे ही बताए हैं। इसमें सबसे एक तो ये भी है कि उसका ताल्लुक आपके प्लान से ही है। मैंने बोला जब आपके पास प्लान नहीं है, आप कुछ भी कर लो, आप ऐसे ही चल रहे हो, वो रिस्क भी नहीं है। उसको आप रिस्क भी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि आप अनप्लान्ड, जहाँ पे भी एक वही मैंने स्टार्टिंग में क्राउड वाली बात बोली थी ना, आप क्राउड को देख के चल रहे हो। अगर आपके पास अपना प्लान है, जब आपके पास प्लान होगा ना, तो प्लान होने का पता है क्या मतलब है? सिर्फ प्लान नहीं कि मुझे पता ही करना है, आपके पास प्लान है तो आपको पता है एक गोल है, इसको मैंने एग्जीक्यूट करना है। अब हो सकता है कि स्टेप हो लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें उस तरह चलें। और ऐसा ही होता है, जो प्लान होता है, बजट भी जब हम बनाते हैं हमेशा वेरिएशन आती हैं, तो आप उसके लिहाज से अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना होता है। लेकिन अब इतना भी हाई रिस्क विदाउट प्लान अगर आप चलोगे तो ऑफकोर्स फिर तो धक्के मिलेंगे और ठोकर खा के बंदा नीचे गिर जाएगा। ऐसा ही हो रहा है आजकल भी। तो सर हम अपने फाइनल सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें इफ़ यू हैव टू साइन ऑफ ऑन सोशल एडिट फॉर अ कंपनी, तो आपको एवेलुएट करना हो उसका प्रॉफिट एवेलुएट नहीं करना, बट कंपनी के जो इम्पैक्ट है एम्प्लॉयज़ के ऊपर उसको और उसकी कम्युनिटी में, तो उसमें क्या रेड फ्लैग आपको नज़र आएगा इमीडिएटली कि यू डोंट वांट टू डू दिस, कि मैं तो ये नहीं कर रहा, कि मुझे ऑडिट मिला है सोशल ऑडिट करने को, तो उसमें आपको क्या रेड फ्लैग नज़र आएगा?
सोशल ऑडिट में हाँ, social कि सोशल ऑडिट से मुराद ये है कि उसका इम्पैक्ट इर्द गिर्द इन्वायरमेंट पे। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले क्योंकि ना उसकी परफॉर्मेंस तो हमें एक्सीलेंट नज़र आ रही है, नंबर हमें परफेक्ट नज़र आ रहे हैं, तो आपको दिया गया है। तो उसमें मतलब एक रेड फ्लैग जो आपको लगता है कि फ़ौरन हमारी ह्यूमन बिहेवियर डिटेक्ट कर लेता है ना जजमेंट के थ्रू, कुछ इंट्यूशंस होती हैं, तो उसमें आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा रेड फ्लैग है क्या? एक इंडिविजुअल पे या एक ओवरऑल कंपनी का एक सोशल इन्वायरमेंट पे? जी सोशल इन्वायरमेंट की बात हो रही है। जी, सोशल ऑडिट आपको करना है एक, हाँ। आपको सिनेरियो दिया गया है, तो उसमें आपने उसकी फाइनेंशियल चीज़ें नहीं दिखती, वो सारी कुछ परफेक्टली फाइनेंशियल सारी कुछ A to Z सही जा रहा है, मतलब नंबर उन्होंने सही दिए हुए हैं, तो जो एम्प्लॉय का इम्पैक्ट है, एम्प्लॉय की मैं पहुंच गया। अच्छा, अब इसमें ना मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग उस पे जब हम एक कंपनी को देख रहे होते हैं ना, मैंने आपको कहा सबसे पहले ऑडिट के भी ना एक वो फेजेस होते हैं। आप ऑडिट ऐसे नहीं स्टार्ट कर देते कि आज ही हमने फाइनेंशियल्स पकड़ लिए और हम शुरू हो गए। ऑफ कोर्स इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है, सबसे पहले आपका रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में अच्छा, आप लोगों ने, अब आप लोग फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, सबको ही पता होगा जो सुन भी रहे हैं, पेस्टल का एक पता होगा, पेस्टल एनालिसिस का पता होगा। तो मैं इसको पेस्टल के लिहाज से चलता हूँ, फिर आप लोगों को ईजी हो जाएगा। पेस्टल में एक सोशल भी आता है, एक इन्वायरमेंटल भी आता है, एक सब आता है। और ये क्या है, पेस्टल क्या है, वो फैक्टर जो एक्सटर्नली एक ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। तो आप इसको आसान लफ्ज़ों में समझ लें कि ऑडिटर एक पेस्टल एनालिसिस अपना भी लगाता है एक अगर ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है। ये नहीं कि सिर्फ फाइनेंशियल, वो उसको एक ओवरऑल देखता है कि उसका, अगर हम फाइनेंस पे गए तो हम एक एक चीज़ देखेंगे कि एक एक चीज़ कैसे उसको इम्पैक्ट कर रही है। अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी पे एक लीगल पे आ जाते हैं, पेस्टल का जो एल है लीगल, अब एक कंपनी पे कोई लीगल लिटिगेशन चल रही है, वो छुपा रही है, ठीक है, उसका हो सकता है अभी आज के दिन कोई इम्पैक्ट ना हो, लेकिन कल को हमें 5 साल बाद जाके किसी को कुछ हमें देना पड़े, तो ऑफकोर्स उसकी प्रोविज़न आज से हमें बुक करनी है। तो ये सारे फैक्टर्स जो भी हैं, अगर एक कंपनी के सोशल, मतलब ऑडिटर का पर्सपेक्टिव भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये होता है कि डायरेक्ट नंबर्स पे तो कूदना ही नहीं है। सबसे पहले आपको एक एक्सटर्नल फैक्टर से सारे से उसको एक एनालाइज पेस्टल लगा लेना है कंपनी पे कि इस सोशली क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अच्छा, सोशल इम्पैक्ट पे भी ये है कि फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी है और उसका जिस तरह सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहे, उनकी इस तरह की प्रैक्टिस है कि मिसाल के तौर पे वो लोग जो आजकल इन्वायरमेंटल फ्रेंडली का बहुत आ रहा है, तो और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग भी होती है, जो कि आजकल पाकिस्तान में तो नहीं, यूरोप में, EU में तो ये रेगुलेशन भी आ गई है कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करनी है। तो सस्टेनेबिलिटी का सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है ना सोशल पे, एनवायरनमेंट पे। तो अगर कंपनी की उस तरह की प्रैक्टिस ही नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हमें पता है कि ये चीज़ इवेंचुअली उसके, मतलब हर चीज़ का इम्पैक्ट जाके फाइनेंशियल पे होना है। और वो कैसे होगा कि ऑफ कोर्स अगर कंपनी की नहीं है तो हमें पता है इसकी सेल्स गिरने वाली हैं, इसकी अगर इसकी उस तरह की प्रैक्टिस नहीं है, इस पर फ़ाइन पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी नहीं है, अगर कोई मना की है, गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लगाई हुई है कहीं पे कि आपको एक लेवल का जो मेंटेन करना होता है, एनवायरनमेंट का, पोल्यूशन का भी होता है, आप जितना कर रहे हैं या उसके अगेंस्ट आपको कुछ करना है। इस तरह बेस्ट वे सीमेंट की अगर मैं बात करूँ, उसके जितना, क्योंकि वो सीमेंट है, इंडस्ट्री ऑफ कोर्स वो रोक नहीं सकते, वो जो भी वो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कर रहे हैं। तो उस तरह की प्रैक्टिस होती है कि उन्हें या तो उस जिधर काम कर रहे हो तो स्कूल्स बनाने हैं, उधर हॉस्पिटल्स बनाने हैं, तो इस तरह की भी प्रैक्टिस होती है। और इस पे एक लीगल वो खुल जाता है पूरा, एक उन पे केस हो सकता है, उनका लाइसेंस जा सकता है। तो ये मतलब एक एक छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं ना, जो कि हट के हैं फिगर से, लेकिन उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मतलब आप कह लो स्कूल नहीं बनाया आपको कि इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन कल को क्या पता आपका वहाँ से OGDCL का जहाँ पे प्लांट है नेशपा, वहाँ पे अगर वो नहीं कर रहे जिस तरह, अगर कंप्लाई, तो उनका अगर लाइसेंस चला जाता है तो एक्सट्रैक्शन कहाँ से होगी, ऑयल रुक जाएगा, ऑपरेशंस खत्म, इवेंचुअली फाइनेंशियल। जी। तो सर, अगर कोई यंग स्टूडेंट हमारा पॉडकास्ट देख रहा है तो आप उसको क्या एडवाइस करेंगे, किस माइंडसेट के, अगर वो ऑडिटिंग या इस फील्ड में आना चाहता है तो कैसे स्किल या प्रिंसिपल वो अडॉप्ट करे जो उसको हेल्प करें इस कैरियर में? हाँ, अच्छा, सबसे पहले तो अगर कोई यंग है, जो कि सारे यंग हैं, तो इस वक्त मतलब जो इस एज ऑडिट या फाइनेंस में आना चाहता है, अब बिल्कुल, अब जो ये फाइनेंस या ऑडिट या कुछ भी है ना, सबसे पहले तो देखें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यही है कि अगर कोई
इस करियर में अभी स्टार्ट में प्रेशर की वजह से आ गया है ना, और उसको अभी भी आइडिया नहीं था या वो सिर्फ एक सुनी सुनाई बात में, तो वो उसको अभी भी असेस कर सकता है और वो अभी भी स्विच कर सकता है। सबसे पहले मैं ये बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आपका फाइनेंस में और आपने डिग्री या वो कर ली है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी वो बात की कि इस तरह की अवेयरनेस नहीं होती स्टार्टिंग में और हम लोग आ जाते हैं, तो अगर तो ये स्टार्ट अभी से आपको एक गट फीलिंग भी आ रही है और आपको देख के लग रहा है, अगर चीज़ें मुश्किल लग रही हैं तो फिर ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये वो इंटरेस्ट नहीं है। मुश्किल से मैं नहीं लिंक कर रहा, आपको इस चीज़ में आप इनोवेटिव हो ही नहीं सकते। आपको पता है कि मेरी क्रिएटिविटी इधर है ही नहीं, मेरी कहीं और है, तो आपको स्विच कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद भी आपके पास बहुत अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ है स्विच करने की, बहुत सारी आप स्किल्स सीख सकते हैं। ये अब फाइनेंस पे अगर बंदे को पता चल गया दूसरा स्टेप कि अब मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट लाई करता है और मैं यहीं के लिए बनाऊँ, तो वो ऑफ कोर्स जब उसको सबसे पहले अगर इंटरेस्ट ढूंढे और स्पेसिफिक इंटरेस्ट ढूंढे कि क्या मुझे अकाउंटिंग पसंद है, तो ठीक है, आप ऑडिट के स्टैंडर्ड्स वगैरह IAS आइज़ा ऑडिट स्टैंडर्ड होते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंटिंग IFRS, ठीक है, आप वो देख सकते हो। आप आहिस्ता आहिस्ता उसको पढ़ें, क्योंकि ये चीज़ इंटरव्यू में भी काम आती है और एक एंट्री लेवल के लिए बहुत ज़रूरी होती है अप टू डेट नॉलेज। मतलब नॉलेज जो है एक बंदा, क्योंकि एक जब अभी फील्ड में आया नहीं है तो स्टूडेंट से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इसे काम आता होगा। अगर किसी का आज इंटरव्यू भी हम लेते हैं किसी यंग स्टूडेंट का, तो उससे हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आज वो एक्सेल में मुझे पिवट टेबल और वो मुझे 1 मिनट में सारी फाइल रेडी कर देगा। उससे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो उसने एकेडमिक जो उसने पिछले 4 साल में किया, वो अपनी नॉलेज जो है ना वो अप टू डेट रखे। अगर फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो फाइनेंस में IRR उसके पीछे लॉजिक्स ढूंढें कि चीज़ आई है क्यों आई है। मतलब जितना आप चीज़ों में घुसेंगे आप उसका वैल्यू एडिशन ढूंढेंगे ना कि ये चीज़ का काम हो रहा है क्यों हो रहा है। अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बना है, आप अगर उसको बोरिंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको नहीं समझ आने वाला, क्योंकि ये क्या है, ये तो वैसे ही ये याद करना पड़ रहा है, उस तरह नहीं करना। अगर ऐसा स्टूडेंट कोई भी है उसे चूज़ करे और चीज़ इंटरेस्टिंग है तो उसके पीछे एक ना लॉजिक ढूंढे और चीज़ें आई क्यों, इसका क्या वैल्यू एडिशन हो सकती है और मैं इसमें क्या ऐड कर सकता हूँ, ताकि वो अगर वो इस पर्सपेक्टिव से स्टार्ट ही देखेगा ना चीज़ों को, तो वो कोई भी चीज़ उससे मुश्किल भी नहीं लगेगी और वो क्रक्स तक पहुँच जाएगा कि एंड में इसका आने का क्या था, क्योंकि एंड में हर चीज़ का कोई मकसद है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बनता है, IAS 38 बनाते हैं, इंटेंजिबल्स आए तो फिर आया IFRS 9 भी एक वजह से आया था कि जो कि लोन्स और एक क्या हुआ था द ग्रेट मतलब वहाँ पे USA में 2009 में। तो अब ये सारी चीज़ों का इवेंचुअली कोई इम्पैक्ट होता है, तो बंदा एक चीज़ों की लॉजिक में जाए और उसको करे और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर ले, तो वो उसकी सारी चीज़ें आगे सही हो जाएंगी। तो क्या आप मार्केट में, जैसे आप जॉब मार्केट में हैं, तो आपने टेक्निकल गैप को आइडेंटिफाई किया हो कि हमारी जॉब मार्केट में टेक्निकल गैप बहुत ज़्यादा है? टेक्निकल गैप अब ऐसा होता है टेक्निकल गैप मतलब से हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ कोई हमारे पास सर्टिफिकेशन या कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेट नहीं कर रहे, कुछ ऐसा हो जाता है, या अपने आप को अप टू डेट नहीं कर रहे। हाँ, अब मोस्टली जो मैं आपको बता रहा था ना जॉब्स में यही होता है कि जो यहाँ पे अब ये माइंडसेट वाली बात दोबारा आ रही है, ये बार बार आई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक दफ़ा मैंने आपको बोला ना लर्निंग वाला जिसका माइंडसेट नहीं है, या ऑर्गेनाइजेशन भी अगर ऐसी है, इसका भी वो जो हमने सारी बातें की ना उसके एंड में क्रक्स आ रहा है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ही ऐसी है कि उसको फ़र्क ही नहीं, वो एक रिपीटेटिव काम है करवा रही है, वो बंदा भी ऐसा है कि उसे अपनी लर्निंग से कोई वो गर्ज नहीं है और वो वही कर रहा है, तो वो क्या ग्रो करेगा, टेक्निकल चीज़ों से वो पीछे रह जाएगा। और रह भी जाती हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एक बंदे में भी एक होनी चाहिए लर्निंग की और एक ऑर्गेनाइजेशन में भी, ताकि दोनों जब मिल के काम करेंगे ना तो फिर ही एक टेक्निकल गैप हम मतलब उसको कम कर सकते हैं। उसके बगैर तो अगर आप एक ही काम करते रहेंगे रिपीटेटिव नेचर, आप उसकी इंप्रूवमेंट नहीं ढूंढेंगे कि मैं इस काम को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, तो आप वहाँ पे स्टक रहेंगे और टेक्निकली तो आप मार्केट से पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। तो फाइनल वर्ड्स अगर ऑडियंस के लिए आप कुछ कहना चाहें तो? अच्छा, फाइनल वर्ड्स तो बहुत सारे वैसे मैंने पीछे भी बताए हैं, जो मतलब मेरा जो सारी कन्वर्सेशन को वो मैं कंक्लूड ही कर रहा हूँ। तो मेनली जिस तरह मैंने इंटरेस्ट की बात की थी, सारे जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले उन्हें अपना ना इंटरेस्ट को देखना चाहिए मस्ट। और अच्छा, अब इंटरेस्ट में भी बहुत सारी कन्फ्यूजन आ जाती है, किसी को ये नहीं समझ आता है इंटरेस्ट कहाँ पे है, ठीक है, एक ये भी बड़ा मसला है। तो उसमें देखें ऑफ कोर्स ये कन्फ्यूजन हर किसी को होती है, लेकिन आप ये है कि एक लेवल की आपको कंफर्ट चाहिए। ये नहीं कि आप 100% श्योर हो कि मैं मतलब आई विल बी द किंग ऑफ अकाउंटिंग या फाइनेंस। एक लेवल की अगर आपका हल्का फुल्का इंटरेस्ट जो आपको दिख जाता है, आपकी गट
गट फीलिंग आ जाती है, आपको अंदर से पता चल जाएगा कि मैं ये है मेरे लिए। तो आप उसमें अपनी, जिस तरह मैंने कहा, नॉलेज अपग्रेड करो और आप थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज़ देखते रहो और ऑन हैंड्स काम की तरफ जल्द से जल्द आ सकते हो तो आओ, क्योंकि जब आप जितनी चीज़ें आप पढ़ते रहोगे, बुकिश नॉलेज जो है ना वो इज़ समथिंग एल्स, और जब आप प्रैक्टिकल आते हो तो वो एक अलग ही चीज़ है। तो जितना जल्द से जल्द, क्योंकि आजकल अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हैं, सारे जेंजी हैं, तो सबको पता है कि आप ज़रूरी नहीं, आप जॉब से पहले भी आप अपना फ्रीलांस पे भी आप काम कर सकते हो अपनी फील्ड का। ज़रूरी नहीं है कि फ्रीलांस पे मैं आज फाइनेंस वाला हूँ तो मैं कोडिंग सीखना शुरू कर दूँ, मैं कोडिंग करूँ, ये नहीं करना। यानी अगर आपको पता है मैं इस फील्ड का हूँ तो ठीक है, आप इसमें एक्सपर्टी आप ढूंढो कि मैं कौन सी सर्विसेज अपनी सेल कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर अकाउंटेंट, बुक कीपिंग लोग करवाते हैं, फाइनेंशियल मॉडल बनवाते हैं, तो आप उन स्किल्स की तरफ जाओ, आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि ठीक है यार मैं एक, क्योंकि देखो इवेंचुअली सब लोग इसलिए कर रहे होते हैं कि एक मतलब पैसा ही कमाना है सब ने। तो जब आप देखोगे अच्छा इस चीज़ में है कुछ इसमें आपको पोटेंशियल नज़र आ रहा है, तो आप वो स्किल सीखो और उस पर आप अपना हाथ साफ करो, आप उसको वो पॉलिश करो स्किल। तो ये आपकी जॉब से पहले आप इतना वो कैपेबल हो जाओगे कि हो सकता है आपको जॉब की भी ज़रूरत ना पड़े, आप अपना स्टार्टअप कर लो, या अगर जॉब पे भी आते हो तो आपको एक अपर हैंड मिलेगा सबसे। तो इसलिए ये चीज़ जितनी भी है अपना स्किल आइडेंटिफाई करके उस पर काम करना ये बहुत ज़रूरी है। That's really insightful. Sir, thank you so much for joining us and share your perspective on ethic, leadership, workforce culture. Today discussion remind us that business don't rely on numbers. Behind every balance sheet, there are people's value decisions that ultimately determine an organization's success and sustainability. Thank you everyone listening. Stay tuned for the next episode. Thank you so much.